I think that is very important, and Uttar Pradesh stands out in this. The survey pointed out state governments effort towards provide adequate social protection, improve the lives of the special sections such as the elderly, destitute, marginalized, middle class and weaker sections of the society. In order to improve the standard of living and of women, their safety, national nutrition, the government has taken massive steps. And if you look at expenditure data, these are quite significant, quite important. So going forward, I highlight two issues. One is urbanization and re-densification policy that the survey says. As Madhya Pradesh economy prospers, I am sure urbanization will be happening at a very fast pace and more resources will have to be made available to the municipality. In my view, a lot of emphasis on decentralization is about rural decentralization. It should be so as more people live in rural areas. However, the share of urban population is increasing at a fast rate. We need to have innovative ideas about more resources to be made available to the urban sector. In this context, urbanization, de-densification policy highlighted in the economic survey is very significant. And I am sure it is impossible to ask for the government to make the increasing demand for urbanization. It has to be done for public-private, private partnership in many areas of public service delivery. When you talk about urbanization, we cannot ignore the scale of the scale economy. The recent RBI study shows that 70% of the urban spending is in municipal corporations. So as it is more, my submission would be that we actually focus on big municipal corporations, improve public service delivery there. So that we don't, and of course support other institutions. But since we spend more in terms of at the national level, also 70% is only spent by municipal corporation. I think spreading the resources through municipal corporation for improvement of service delivery will further increase the process of urbanization. We have more planned and inclusive urbanization in that way. One can focus on big municipal corporations to start with. Last issue, I think that is very important in my view. As per the economic survey, Madhya Pradesh is a forest rich state, with nearly 30% of the state being covered by dense forest. Having forest is also having an opportunity cost, because you have to maintain the forest and you really cannot really have alternative economic opportunities. I understand Finance Commission is giving grants because of forest cover, but the opportunity cost of holding forest, the 30% area of the forest, if the state is forest, I think the money that state spend, opportunity cost of that fund is much more than the money the state receives from the central government in terms of forest cover as an indicator of tax revenue. So I would submit that future economic surveys, I think should try to estimate the cost and benefits of this forest cover. So I urge that what are the climate change mitigation happening because of this large forest cover? In the process, what is the contribution of the states to the global public good, and how much money they are losing because of this large forest cover? And that can also be a discussion point with the 16th Finance Commission, because forest cover is important, but I think states as a principle by this large forest cover and what are these opportunity costs to be done. And finally, I think impact of central policy on state is a very important issue for a state like Madhya Pradesh, which has got high dependence on central transfers. So if the tax devolution of the central government fluctuates because the central revenues fall, Madhya Pradesh suffers more than Maharashtra because its dependence on central transfer is high. So I think it is also very important in future surveys, probably we use such estimates and show how much vulnerability is because of states' own resources and how much of the fiscal management is impacted by the changes in central transfer. And these evidences will also give us the constraints under which the state economy operates and how it has developed over time within the overall constraint of resources by mobilizing higher taxes and increasing spending. Thank you very much for this opportunity.
सर। अब मैं पूर्ण सम्मान के साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्य उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित जिनको अभी हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे, आदरणीय श्रीमान पिनाकी चक्रवर्ती जी, आदरणीय सचिव जी, सिद्धार्थ चौधरी जी, प्रोफेसर मल्होत्रा जी भी आज पधारे हुए हैं, एस.के. मिश्रा जी, अजीत केसरी जी, उपस्थित मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों। अक्सर बजट बड़ा रूखा सूखा ऐसा विषय होता है जिसपे जनता को लगता है कि हमारा काम ही नहीं है, तो विद्वानों का काम है, शास्त्र रुचि केवल इतनी रहती है कि हमें क्या मिले, लेकिन हमारा प्रयास है कि बजट बनाने में भी पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और फिर पिछले वर्षों में हमने ये प्रयास प्रारंभ किया कि बजट कैसा हो, इसमें आम जनता के सुझाव मांगे जाए। हमने आम जनता से अपील की, वित्त मंत्री कई लोगों से मिले और मुझे खुशी है कि 4000 से ज्यादा सुझाव जनता के बीच से निकल के आए और हमने उनमें से अधिकांश को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। अभी पिनाकी जी कई चीजें आपको बता देते। बजट के पहले आता आर्थिक सर्वेक्षण। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ तथ्य विस्तार से प्रोफेसर सतीश चतुर्वेदी जी भी आपके सामने रखेंगे, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो बजट सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23, इसमें तेजी से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की तस्वीर हमें दिखाई जाती है। कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, व्यापार, सामाजिक आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना, कौशल विकास, सुशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गरीबों का कल्याण, सार्वजनिक वित्त जैसे अनेकों विषय जिस पर मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं सही दिशा में दूरदर्शी सोच के साथ अगर प्रयास किए जाए तो कठिनाइयों को भी कामयाबी में, चुनौती को भी अवसर में बदला जा सकता है। और मध्य प्रदेश ने ये किया है। पिछले साल हमारी आर्थिक विकास की दर थी 80% के पार, उसके ऊपर इस साल हमने 16.43% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है, जो अपने आप में बहुत उल्लेखनीय और संतोषजनक है। 2001, 2, 3 चले जाए तो 3-4% से ज्यादा कभी मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट बढ़ी नहीं, मध्य प्रदेश अब बढ़ रहा है। अगर आप सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखें तो 2002-03 में था ये केवल 71,000 करोड़ के आसपास। और मुझे बताती खुशी है कि सकल घरेलू उत्पाद हमारा 22-23 का 13,22,821 करोड़ रुपया है। कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये 18 गुना वृद्धि, ये अपने आप में चमत्कारिक है। पर कैपिटा इनकम देख लीजिए आप, 2-3 के आसपास थी 11,718 रुपए,
37,497 रुपया और 22 केस में ये बढ़ के पहुंची 1,40,583 रुपया प्रति व्यक्ति आए। मैं अभी संतुष्ट नहीं, हमें और आगे जाए, लेकिन जिस गति से हम बढ़ रहे हैं वो अपने आप में विकार है। कई बार एक आरोप लगाया जाता है, कर्जा ले लिया, लेकिन ऋण के कुछ लेने के कुछ मापदंड होते हैं, आधार होते हैं। अगर आप ऋण जीएसडीपी अनुपात देखेंगे तो ये 2005 में था 39.5%, लेकिन 2021 में ये घट के हो गया 22.6%। एक इंडिकेटर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका पूंजीगत व्यय। अब लगातार देखेंगे हमारा पूंजीगत व्यय पिछले साल कोविड के बाद, कोविड के कठिन दौर में हमने 23.18% बढ़ा के 45,685 करोड़, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक पूंजीगत व्यय था। इस साल जब मैं बजट पे आऊंगा तो हमने और बढ़ा के रखा है। कोविड की कठिनाइयों के बावजूद भी राज्य का रेवेन्यू, राजस्व हम लगातार बढ़ाते हैं और ये बढ़ा है 7.94% की दर से। अभी कल ही मैं समीक्षा कर रहा था अपने राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों का। अकेले जीएसटी में 22% अब तक फरवरी में अंत तक 22% की वृद्धि दर्ज की। हम टॉप 5 जो राज्य हैं देश के उनमें से हम लगातार अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अगर आप देखें, किसानों को ऋण में 13.41% और एमएसएमई क्षेत्र को ऋण में 30.22% की वृद्धि हुई है। एक सुखद संकेत है। एकदम गरीब आप देख लीजिए, स्ट्रीट वेंडर, सड़क पे बैठ के बिजनेस करने वाले, हाथ खिलाते, कुंडी में काम करने वाले, उनको बिना ब्याज के मिलते हैं 10,000 रुपया। पीएम स्ट्रीट वेंडर गांव के लिए हमने बना दिया सीएम स्ट्रीट वेंडर। अकेले पीएम स्ट्रीट वेंडर में देश में हम नंबर 1 पे 6 लाख से अधिक ऐसे शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को 0% ब्याज पे कर्ज देने का काम करके उनकी आजीविका बढ़ाने की कोशिश की है। आप कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, 2001 तक विकास दर थी केवल 3%, अब बढ़ के हो गई है 19%, 19%। और सेक्टर मध्य प्रदेश से चमत्कार किया। मैं कुछ आंकड़े आप इससे अंदाज लगाइए। 2013-14 में गेहूं का उत्पादन था 174.8 लाख मीट्रिक टन, 22-23 में बढ़ गया होगा 352.7 लाख मीट्रिक टन। और गेहूं के एक्सपोर्ट में भी 46% हमने हासिल की है। धान का पैडी का उत्पादन अगर आप देखें तो ये 53.2 लाख मीट्रिक टन था, उससे बढ़ के हो गया 131.8 लाख मीट्रिक टन। सिंचाई की दृष्टि से देखें, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। जब हमने सरकार संभाली तो मध्य प्रदेश में राजा, नवाब, कांग्रेस, अंग्रेज सबकी मिला के सिंचाई की क्षमता थी 7.5 लाख हेक्टर। अब बढ़ा के हमने कर दी 45 लाख हेक्टर और 65 लाख हेक्टर पे काम चल रहा है। औद्योगिक विकास दर 1-2 अगर आप देखें तो ये थी केवल उस समय 1
22-23 में बढ़ गई 24%। हमको काम और करना है, इसमें कोई तो नहीं, लेकिन हमने जो किया वो कम नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य को कभी बीमार कहना था। और मित्रों, इस साल का जो बजट है वो हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन की तरफ इशारा कर रहा है। पिछले बार बजट का आकार था 2,79,237 करोड़। अब हम 3 लाख करोड़ के क्लब में शामिल हो गए हैं। इस साल का हमारा बजट है 3,14,025 करोड़। हमारा राज्य का कोषीय घाटा ये 55,709 करोड़ अनुमानित है, जो हमारे जीएसडीपी के 4% की सीमा में है, अलाउ करके भारत सरकार। और मैंने अभी ऋण जीएसडीपी अनुपात की बात आपसे कही थी। 2002-03 में वो 31.6% था, वो घट के इस साल अनुमान है 27.8% रहने का। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर इस बजट को देखें तो बहुत संतुलित बजट है। आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश या हमने संकल्प। प्रधानमंत्री जी का $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश ने कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे। और उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के हमने पिछले साल के 48,800 करोड़ से इस साल 56,256 करोड़ रुपया रखा है। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। फिर हम लोगों ने इस बार प्रयोग किया कि सेक्टर वाइज एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सड़क, सिंचाई, बिजली, इंफ्रा, उसके लिए धन की कमी ना रहे, उसका हमने पर्याप्त प्रावधान किया। लेकिन दूसरी तरफ वेलफेयर स्टेट का काम है, हम जनता को कैसे राहत दें। प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। और उस दृष्टि से अगर देखें तो महिला, किसान, युवा और गरीब, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम बाकी सुनना चाहते हैं। अब आधी आबादी महिलाओं की उपेक्षित रही है, पीड़ित रही है, शोषित रही है। ऐतिहासिक अन्याय हुआ था और उसी पीड़ा में से लाडली लक्ष्मी योजना जैसी हमारी निकली, कन्या विवाह जैसी योजना निकली। लेकिन इस साल हमने एक और योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। टोटल बजट का मुझे कहते पूछिए 1,02,975 करोड़ रुपया बहनों पे खर्च करते हैं, बेटी, बहन और मां पे खर्च करते हैं। लाडली बहना योजना ये फ्री में बांटना नहीं है। हमने 2017 में प्रयोग किया, बेगा, भारिया, सहरिया जो आते हैं पिछड़ी जनजातियां, उनकी बहनों के खाते में 1,000 रुपए डालते और गरीब और बाद में नीति आयोग ने, मैंने कहा कि इम्पैक्ट असेसमेंट और इस पैसे का आपको सुखद आश्चर्य होगा, उन परिवारों के पोषण का स्तर बढ़ गया। बहनों ने वो पैसा फालतू खर्चा नहीं किया, दूध खरीदा, सब्जी खरीदी, फल खरीदा, दाल खरीदी, बच्चों को खिलाया, तो पोषण का स्तर बढ़ गया। इसलिए हमने उसका विस्तार कर दिया। जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, उनके खाते में 1,000 रुपया हर महीने डाला जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है उसका सदुपयोग होगा। बहनें स्वावलंबी भी बनेगी, आत्मविश्वास से भी बनेगी और परिवार का कल्याण भी बनेगी।
सारे प्रावधानों में नहीं जा रहा है। युवाओं के लिए केवल एक ही बात होता है, नौकरियां में शासकीय नौकरियां है 1,24,000। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना में 1 लाख नौजवानों को 50 लाख रुपए तक का ऋण, उसके ऊपर ब्याज का अनुदान देने का प्रावधान है। हर महीने हम रोजगार दिवस मनाते हैं, उसमें 2.5 लाख लोगों को, जिसमें यूथ शामिल है, रोजगार के लिए ऋण देते हैं। लेकिन एक योजना मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना प्रारंभ कर रहे हैं। करो और कमाओ, सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न। तो ये बच्चे काम सीखेंगे भी और 1 साल पे एक बच्चे को 1 लाख रुपया मिलेगा। बेरोजगारी बनता नहीं, मेहनत के तो वो काम भी सीखेंगे, बाद में उनको परमानेंट जॉब भी मिलेगा। एक मुख्यमंत्री ई-वाई का स्कूल की योजना, वो बेटियां जो अपने स्कूल में फर्स्ट आएंगी हायर सेकेंडरी में गांव में ऐसे ग्लोबल स्किल पार्क के साथ साथ 4 और नए स्किल सेंटर, स्किल मैन पावर तैयार करना है। किसानों के लिए 53,964 करोड़ का प्रावधान, किसान कल्याण योजना के लिए भी 3,000 करोड़ से ज्यादा। और जो डिफॉल्टर किसान हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनका ब्याज भरने के लिए भी, ताकि 0% ब्याज दर से कर्जा मिल सके, 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। गरीबों के मकान के लिए 8,000 करोड़ रुपए, संबल के लिए पर्याप्त प्रावधान। तो गरीब कमजोर वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति के लिए 36,950 करोड़, और जाति के लिए 26,000, अनुसूचित जाति के लिए 26,087 करोड़। आप खेल देख लीजिए, यूथ बढ़े तो पिछले साल से लगभग 3 गुना बढ़ा के 738 करोड़। हेल्थ के लिए, शहरी विकास के लिए, अब अर्बन डेवलपमेंट की अलग अलग चीजों के लिए 14,882 करोड़। मेट्रो और बाकी सब चीजों के अलावा हमारी कोशिश है कि आकाश मार्ग का उपयोग भी शहर करें, कि रोपवे, केबल कार। अब भोपाल में मेरी कल्पना है कि सीधे बड़े तालाब के सिरे से केबल कार चले और एयरपोर्ट उतार दे लोगों को, सड़क पर पहुंच पाए। इस बार स्टेशन पर उतरेंगे और रोपवे में बैठ के सीधे महाकाल परिसर पहुंच जाएंगे। तो सड़क पे हम कैसे कोच कम करें? इंफ्रा में दिल्ली एक्सप्रेस पे, नर्मदा एक्सप्रेस पे, चंबल अटल एक्सप्रेस पे। ये जो एक्सप्रेस है, इनके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर का नई टाउनशिप डेवलपमेंट करते हुए प्रदेश को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ समृद्ध बनाने का प्रयास। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सीएम राइज स्कूल हमारी अलग है, पीएमसी स्कूल तो और जोड़ते हैं। सीएम राइज स्कूल का मतलब इतना बेहतर इंफ्रा स्कूलों का, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, एक स्कूल के इंफ्रा में 35-38 करोड़ रुपए खर्च। बच्चे आएंगे तो केवल उसी गांव के नहीं, आसपास के गांव के भी बस लेने जाएगी, बस छोड़ेगी। और बेहतर शिक्षा स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी दिल्ली मुंबई में बैठ के भी अच्छे शिक्षक पढ़ा सकते हैं। सारे सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, और विस्तार में उसका जिक्र नहीं करूंगा। एक चीज और देखें, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। हम आर्थिक प्रगति तो चाहते हैं, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा भी कुछ चाहिए। और इसलिए शरीर, मन, बुद्धि के साथ साथ आत्मा का सुख भी मनुष्य प्राप्त करे। इसलिए महाकाल महालोक इसका सेकंड फेज हम बना रहे हैं। आचार्य शंकर जिन्होंने सांस्कृतिक रूप से भारत को जोड़ा, एक आत्म धाम भी बना रहे हैं। स्टेचू ऑफ वननेस बन रहा है आचार्य शंकर का। देवी महालोक, राजा राम रजा लोक,
चित्रकूट में बनवासी भगवान राम का और छिंदवाड़ा में जाऊं सावली में हनुमान जी का। तो हम भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति की तरफ भी ध्यान देते हैं। भौतिक और अध्यात्म का समन्वय। रोटी भी चाहिए लेकिन अकेली रोटी से काम नहीं चलता। तो लोगों के आनंद में भी वृद्धि और जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी लोग प्राप्त कर पाए, उस दिशा में भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। मैंने समय ज्यादा नहीं दिया, थोड़ा मैं माफी चाहूंगा। यहाँ विद्वान वक्ता हमारे बैठे हुए हैं। मैं सचिन जी आपको बहुत धन्यवाद इस बात के लिए देता हूँ कि बजट पे बहस होनी चाहिए। सभी संभागीय केंद्रों पर भी हम करेंगे सेमिनार गोष्ठियां। और मेरा तो विचार है कि बजट पे ग्राम सभाएं करें और गांव की जनता को भी बताएं बजट पे, सब बजट को समझें और शेयर करें। और अगली बार को और अच्छा बजट बनाने आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं एक दृष्टिता कर रहा हूँ कि मेरा आज कार्यक्रम ग्वालियर पूरी अन्य कुछ स्थान पर है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट, मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट, मध्य प्रदेश गीता स्टेट। आप 30% आपने कहा तो हम जंगल भी बचाए और वन्य प्राणी भी बचाए। आज भी टाइगर छोड़ने जा रहे, एक अभ्यारण्य यहाँ खत्म हो गए थे, बचे नहीं थे, उसको फिर से माधव राष्ट्रीय उद्यान उसको टाइगर से आबाद करना है। तो मैं उन कार्यक्रमों के लिए आपसे जाने की इजाजत चाहता हूँ। बाकी कार्यक्रम यथावत चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फॉरेस्ट कवर 30% है, सिद्धार्थ कह रहे थे साहब, या आप कह रहे थे 30% फॉरेस्ट कवर आपने कहा। तो हम जंगल भी बचाए हैं और वन्य प्राणी भी बचाए हुए हैं। तो आज भी टाइगर छोड़ने जा रहे हैं। एक अभ्यारण्य यहाँ खत्म हो गए थे, बचे नहीं थे, उसको फिर से माधव राष्ट्रीय उद्यान उसको टाइगर से आबाद करना है। तो मैं उन कार्यक्रमों के लिए आपसे जाने की इजाजत चाहता हूं। बाकी कार्यक्रम यथावत चलेगा।